Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Welcome back to the another video. This is the second session. Okay, live classes का second session है. तो अच्छा, जो कल असाइनमेंट मैंने दिया था उसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो मुझे प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में नीचे बता दें. मैंने लाइव चैट जो है वो ऑन किए हैं, तो मुझे उसमें अपडेट करने हैं. आप लोगों ने असाइनमेंट कर दिए हैं कि नहीं? मुझे वो भी अपडेट करने हैं. ओके. और अगर असाइनमेंट कर दिए तो उसमें कोई कौन कौन से एमसीक्यूज में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था? जिस एमसीक्यूज में आपको कन्फ्यूजन हो रहा था तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पुट कर लें लाइव चैट में, सो मैं उसका आंसर कर दूंगा. ओके, जस्ट 5 मिनट्स वेट करते हैं, उसके बाद क्लास को प्रॉपरली स्टार्ट कर लेते हैं. सो okay, last time I asked you about the question that why we are using silicon mostly, like more as compared to germanium. So first of all, I want to answer you that question. Then we will start the classes properly. ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा हम जो सिलिकॉन होते हैं, जहाँ भी होते हैं, सिलिकॉन को हम यूज़ करते हैं मोस्टली. जर्मेनियम को यूज़ नहीं करते हैं. उसको क्यों यूज़ करते हैं उसमें मैंने आप लोगों से कहा था, एक क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आंसर यू दैट क्वेश्चन. उसके बाद चैप्टर 2 की तरफ आते हैं. Okay, actually we use silicon mostly as compared to the germanium. Okay, that is actually इसके कुछ reasons हैं. So let's discuss that reasons. The first one is actually the electrons, you can say the electrons, the free electrons in collector, that is very less than the free electron in germanium. Okay, so इसी वजह से like जो सिलिकॉन होते हैं उसके कलेक्टर में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं जिस जर्मेनियम से एट रूम टेम्परेचर. ओके, रूम टेम्परेचर पे उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, जिसकी वजह से उसमें हमारे पास जो कलेक्टर कट ऑफ करंट होते हैं, कलेक्टर कट ऑफ करंट, तो वो कम होते हैं बहुत सिलिकॉन में एज कम्पेयर टू दी जर्मेनियम. ओके, like if this is the, let's suppose this is NPN transistor. Okay, this is your NPN transistor, or this is your base, this is your collector, this is your emitter. So over here the number of electrons in collector in silicon, that is less than the number of electrons in collector in germanium. So due to which the collector cutoff current will be less. Collector current means like that is equal to the number of electrons times the charge per unit time. So if less number of electrons, that means that the current will be you will have a less value of current. So like, and collector cutoff current means the reverse current. Okay, so if you connect this terminal with the, like if this is NPN transistor, then if you connect this terminal N terminal with the positive terminal of the supply, then it will be in the reverse, or like reverse bias you can say. And in this case they will, due to a few number of electrons, the collector cutoff current in silicon that will be less than the germanium. Okay, in germanium we have huge number of free electron in collector, so that is one reason. Second reason is that like the, with increase in temperature, like if you increase the temperature, then the variation in collector cutoff current in silicon, that is less than the variation in collector cutoff current in germanium. Okay, so that is your second reason. Like अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर लो तो कलेक्टर कट ऑफ करंट का जो वेरिएशंस हैं सिलिकॉन में वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू दी जर्मेनियम. ओके, दैट इज द सेकंड रीज़न. थर्ड रीज़न इसका ये है कि लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ द जर्मेनियम दैट्स will not destroy with temperature. Like if you increase the temperature,
तो फिर आपका जो स्ट्रक्चर है सिलिकॉन का वो स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी जर्मेनियम। ओके, ये इसका थर्ड रीज़न कि हम सिलिकॉन को क्यों यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू दी जर्मेनियम। अच्छा, इसमें और भी रीज़न्स हैं हमारे पास। फोर्थ रीज़न इसमें ये है कि हमारे पास जो सिलिकॉन की फैब्रिकेशन में जो हमारे पास वेफर यूज़ होते हैं, तो वो जो होते हैं वो लाइक दैट्स मेड फ्रॉम दी सैंड, और सैंड जो होता है वो हमारे पास नेचर में बहुत एबंडेंट अमाउंट में होते हैं। तो उसी वजह से लाइक बिकॉज ऑफ दी एबंडेंस दी सिलिकॉन इज़ लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू दी जर्मेनियम। ओके, तो ये इसका फोर्थ रीज़न था। अच्छा, फिफ्थ रीज़न इसका ये है कि हमारे पास जो सिलिकॉन है उसका पीक इनवर्स वोल्टेज वो सिलिकॉन के जो है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू दी जर्मेनियम। तो पीक इनवर्स वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा तो इट मीन्स कि आपका जब रिवर्स बायस इसके क्रॉस हम अप्लाई करेंगे, चाहे जितना भी ज़्यादा लाइक फॉर एग्जाम्पल पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो 20 वोल्ट है, तो इट मीन्स कि आप इसके क्रॉस जो रिवर्स बायस है वो अप टू 20 वोल्ट तक आप अप्लाई कर सकते हो। सो दैट इज़ योर पीक इनवर्स वोल्टेज। सो दैट इज़ ग्रेट, जितना ज़्यादा होगा तो उतना बेस्ट होगा हमारे लिए। ओके, क्योंकि इससे वो जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। So that's why this is the fifth advantage of silicon. Okay, so that's why because of all these five advantages we use silicon more abundantly than germanium during our life. Okay, अच्छा, इसके अब ये तो हमने प्लस पॉइंट्स इसके एक्सप्लेन कर दिए। नाउ लेट्स कम टूवर्ड दी डिसएडवांटेज कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। ओके, नेगेटिव पॉइंट्स में कोई खास है नहीं इसका, लेकिन इसका एक ही नेगेटिव पॉइंट है, दैट इज़ द बायसिंग बायसिंग और नो द potential barrier, you can say the potential barrier potential barrier for silicon that is greater than the potential barrier for germanium. Okay, that is 0.7 for silicon and that is 0.3 for germanium. Okay, so that is the negative point for this, but due to huge number of advantage we use the silicon more abundantly as compared to the germanium. Okay, अच्छा, होपफुली आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। ये तो काफ़ी बेसिक चैप्टर था। लास्ट टाइम मैंने होमवर्क आप लोगों को दिया था, ये उसमें मैंने कुछ वीडियोस भी आप लोगों को रिकमेंड किए थे कि आपने ये सारे वीडियोस देखने हैं, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम्स होगा तो फिर उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसको मैंने डिस्कस भी किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप इसी प्लेलिस्ट में चले जाओ तो वहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, कल ही अपलोड हुआ था, तो वीडियो सेक्शन में चले जाओ तो वहाँ पे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, ये MCQs 85 MCQs थे, ये सारे वीडियो जो थे वो मैंने वहाँ पे शेयर कर दिए थे। ओके, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं था। कुछ MCQs, सब MCQs मैंने काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए, तो होपफुली आप लोग को इतना वो होपफुली आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अच्छा, आज का टारगेट जो है, आज हमने चैप्टर 2 से स्टार्ट करने। ओके, और चैप्टर 2 के जो बेसिक्स हैं वो सबसे पहले आई विल डिस्कस दैट, then later on I will discuss the MCQs of that chapter. Okay, अच्छा, I will also assign you homework. Okay, so you will need to follow that homework. Okay, अब मेरे साथ आप लोगों ने चलने। ओके, तो आप लोगों का बेस्ट होगा। अगर इस तरह रैंडमली आपने स्टडी करनी तो डिस्ट्रैक्शन भी होगा, कभी क्या होगा कभी क्या होगा। सो बेस्ट ये होगा कि हम लाइक मेरे साथ चलो तो आप लोगों का फ़ायदा ही होगा उसमें। ओके, अच्छा, DC सर्किट। अच्छा, दिस इज सेकंड क्वेश्चन फॉर टुमारो। ओके, लास्ट टाइम मैंने ये सिलिकॉन को दिया था। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि लाइक विच वन इज़ मोर डेंजरस, DC is more dangerous or AC is more dangerous. Okay, AC current is more dangerous or DC current is more dangerous, and why? What is the reason behind this? Okay, so you need to answer me this question in the comment section. Okay, okay, so this is
direct current means that it will flow only in one direction. Okay, so लाइक हमारे पास जो डीसी करंट जो होते हैं वो हमारे पास सेल्स हो गए, जो बैटरीज वगैरह हैं वो आपको डीसी करंट देते हैं, वो आपको एसी करंट नहीं देते हैं। ओके, ये बात आपने जहन में रखना है कि बैटरी जो होती हैं वो डीसी करंट को स्टोर करती हैं, एसी करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते। जो हमारे पास जो जनरेशन साइड होते हैं, जहाँ पे आपने जितने भी हैं हमारे पास वापडा हो गया, वापडा में आप तोरबेला पावर हाउस देख लो या मंगला पावर हाउस, जहाँ पे भी जनरेशन हो रहे हैं तो वहाँ पे वो स्टोरेज नहीं करते, वहाँ पे उन्होंने बैटरीज को नहीं रखी, वहाँ पे जनरेट हो रहे हैं और उन्हीं जनरेशन को हम फिर यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। ये जो अभी आपको लाइट नज़र आ रही है, जो लाइट ऑन है या जो मैं लैपटॉप चार्ज कर रहा हूँ, तो ये जितने भी जनरेशन ये अभी वहाँ पे हो रही है, तो उसी जनरेशन को हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके, क्योंकि अगर डीसी को पे स्टोर करना, उसको कन्वर्ट करना एसी से डीसी में, और डीसी से फिर एसी में दोबारा कन्वर्ट करना, तो काफ़ी लॉसेस भी होते हैं इससे, क्योंकि लाइक कन्वर्जन में काफ़ी इफ़िशेंसी का फैक्टर भी आ जाते हैं। तो और दूसरी बात यह है कि डीसी को स्टोर करना उसके लिए भी काफ़ी कॉस्टली मटेरियल यू कैन से, लाइक बैटरीज वगैरह आपको बहुत हैवी बैटरी चाहिए होंगी। अच्छा, इसके बाद दिस इज द डीसी सर्किट। ओके, लाइक यू कैन रिप्रेजेंट द डीसी सर्किट लाइक दिस। इसमें आपने इस तरह करना है, लाइक इफ यू रिप्रेजेंट द एसी सर्किट, दिस इज द सोर्स। ओके, और बाकी यहाँ पे सपोज आपका रेजिस्टेंस है, यू रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, बट हियर इफ यू पुट दिस टर्मिनल विद पॉजिटिव साइन और यहाँ पे आपने नेगेटिव साइन पुट कर दिया, then your teacher will give you 0 marks, because in AC there is no permanent positive terminal and no permanent negative terminal. It's only in DC. Okay, there is one positive permanent terminal and one negative terminal, और पॉजिटिव टर्मिनल से आपका करंट आउट होगा। और ये करंट जो होते हैं, ये आपका करंट हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, एक कन्वेंशनल करंट होते हैं। सो ये आपका कन्वेंशनल करंट उसमें फ्लो हो रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है। लेकिन जितने भी बुक्स हैं और जो एमसीक्यूज आ जाए वहाँ पे टेस्ट में, तो आपने जो डायरेक्शन है वो यही शो करनी है। इसमें भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होते हैं, डायरेक्शन आपने ये शो करनी है। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, बट इसको अगर आप देख लो तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे होते हैं, बट हम कहते हैं कि नहीं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन मोशन। ओके, प्रोटॉन मोशन नहीं कर सकते क्योंकि प्रोटॉन आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है, सो वो तो मोशन नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन आपके ऑन द मोशन करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन मोशन स्टार्ट कर देते हैं तो उसको हम करंट कहते हैं। सो एक्चुअल में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है, इस तरह आ रहा होता है, बट हम कहते हैं कि दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ प्रोटॉन। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना चाहिए, नॉट फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल। ओके, तो इसी एजम्पशन को मेंटेन करने के लिए हम बस ये करते हैं कि इसको इन्होंने फिर सेपरेट नेम दे दिया, दैट इज वन इज द कन्वेंशनल करंट एंड सेकंड वन इज द इलेक्ट्रॉनिक करंट। ओके, क्या इसमें अच्छा, अगर आपने घर में इस सब लगाए तो आपने एसी, ये यू शुड बी वेरी केयरफुल हियर कि आपने पेटिस के साथ अगर किसी अप्लायंसेस लगाने तो आपने उसमें एसी अप्लायंसेस लगाने, डीसी वहाँ, सॉरी, आपने वहाँ पे डीसी अप्लायंसेस लगाने, एसी वहाँ पे आपने नहीं लगाना। अगर आप लगा भी लो तो वो ऑन नहीं होंगे। वाई ऑन नहीं होंगे? दिस इज द क्वेश्चन कि अप्लायंसेस अगर मैं एसी के अक्रॉस मैं बल्ब लगा लूँ, एसी बल्ब लगा लूँ, तो वो ऑन क्यों नहीं होता? इसको भी आप लोगों ने मुझे आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। इसका बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है, तो अगर कोई जानते हैं तो कमेंट में या लाइव चैट में मुझे बता दें, मैं कल वो एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया तो आपका आंसर सबको दिखा दूँगा। सो कमेंट कर लें। ओके, इसके पीछे लाइक क्वेश्चन को इस तरह अंडरस्टैंड कर लें कि इफ़ आई कनेक्ट एसी बल्ब अक्रॉस द डीसी सप्लाई it will remain off. Why? अच्छा, then we have combination, series combination, parallel combination.
Now the question come in your mind that why we are going toward these combinations. Actually in your lab you if small resistor or you have huge number of small resistor and you need a large resistor, so you can connect all these resistor in series. It will give you large resistor. Okay, so that is series. But what if you have in your lab you have large number of resistor and you need small resistor? So how you will make small resistor? Like you will need to make the parallel combination of all these multiple resistor, then it will give you the smaller resultant value. Okay, किस तरह कैलकुलेट करने हैं you? I hope you studied it in grade 7. Okay, easy है. अच्छा, you should be very careful over here. Like in resistor in series you will add all these resistor. Okay, and but the power will be in the division form 1 divided by pt, that's equal to 1 divided by p1, 1 divided by p2 plus 1 divided by p3. Okay, अब पैरेलल की तरफ आ जाते हैं. तो पैरेलल मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर दिया कि पैरेलल हमारे पास जो वैल्यू होती हैं वो आपकी स्मॉल होगी. लाइक आपके पास रजिस्टर हैं जो कि बड़े बड़े रजिस्टर हैं और आपको छोटा रजिस्टर चाहिए इतना, तो इसको आप पैरेलल में कनेक्ट कर लें. अच्छा, ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट होते हैं. लाइक इफ वन रजिस्टर वैल्यू इज 12 ohm, sorry, and second resistor value is 10 ohm, then what will be the value of resistance? Okay, and we have two resistor. Okay, and I am going to connect these two in parallel. Then what will be the total resistance? Okay, so like option will be given to you. Option A will be 12 ohm, option B will be 10 ohm, option C will be 7 ohm, option D will be 5 ohm. ओके, और ये लेटर 17 ohm. तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि पैरेलल कम्बिनेशन में आप लोगों को जो रिजल्टेंट होगा, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, दैट विल बी लेस देन द मिनिमम रेजिस्टेंस आउट ऑफ द पैरेलल. Out of these two parallel resistor we have 10 ohm resistor that is less than the 12 ohm resistor. So जो पैरेलल कम्बिनेशन आप इन दोनों को बना लो तो इसमें से जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस होते हैं that will be less than the 10 ohm. Okay, that should be 5 ohm. This will be your correct answer. That will not be 12 volt, that will not be 10 volt, that will not be 17 volt. Okay, okay, now if the question is like we have 12 ohm resistor, we have 10 ohm resistor, and if you connect it in series, then the parallel combination, sorry, then the series combination of these two resistor will be 12 ohm, 10 ohm, 17 ohm, 5 ohm. Then your answer should be like, it will be specifically it will be like 22 ohm. But you like the इसका जो total resistance होगा, that will be greater than the greater resistor out of all these resistors. So यहाँ पे कितने resistors हैं? हमारे पास दो resistors हैं. इसमें हमारे पास highest value is 12 ohm. तो इसका जो सीरीज कम्बिनेशन आप बनाओगे तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगा, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, लाइक द टोटल रेजिस्टेंस दैट शुड बी ग्रेटर देन 12 ओम. ओके, सो ये अगर इनसे एमसीक्यूज आएगा तो ये दो एमसीक्यूज आएंगे. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. पावर इसमें आपने किस तरह ऐड करने हैं? पावर आपने लाइक यू विल ऐड पावर स्ट्रेट पावर दैट शुड बी PT will be equal to P1 plus P2 plus P3. ओके, ये कैलकुलेशन यही सी है. अच्छा, इसमें हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन में हमारे पास सीरीज में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का आता है. वोल्टेज डिवाइडर रूल हम वहाँ पे यूज़ करते हैं. ओके, कि आपका जो है लेट्स सपोज ये का रेजिस्टर है, मल्टीपल रेजिस्टर हैं, और उसमें आपसे पूछते हैं कि V1 फाइंड कर दो. V2 है, V3 है, V4 है. तो आपने क्या करना है? V1 आपने फाइंड करना है, तो आपने यहाँ पे लिखना है कि हमारे पास यहाँ पे R1 है, R2 है, R3 है. सो आपने कहना है कि V1 विल बी टू V is the total source resistor, source ohm,
source voltage, okay, V into R1 divided by R1 plus R2 plus R3 plus R4. Okay, so like this is the voltage divider rule, but if you want to, like, voltage is divided in all these series resistor, okay. If you want to find the current, use the current divider rule. The current is divided in parallel, okay, like in parallel you have, your current will get divided. And if you want to find the current in this case, so what you will do, you will write it like this: I1, that's equal to total current, let's suppose that is I times R1 of sorry, if you want to find current in this direction, then in this branch, then you will use this resistor R2 divided by R1 plus R2. So this is your current divider rule, okay. Okay, now let's come to what the advantage of parallel circuit. The main advantage that we are going to use it in our home. So if you switch off the light of one room, then the light of the second room will not be affected, okay. अगर सीरीज में आप लगाओगे इस तरह, तो फिर क्या होगा, अगर आप इस लाइट को ऑफ करोगे तो ये लाइट भी ऑफ होगा, ये भी ऑफ होगा, ओके. सो दैट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके. लाइक अगर आप एक लाइन में फॉल्ट आ जाए तो दूसरा लाइन उससे इफेक्ट भी नहीं होगा. तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इसकी वजह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं. अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल की तरफ आ जाते हैं. तो इंटरनल रेजिस्टेंस मीन्स कि आपका सेल है, ओके. तो इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है, कितना इसके अंदर हमारे पास जो लॉसेस है, एनर्जी लॉसेस है, वो इसके अंदर हो रहे हैं. तो एनर्जी लॉसेस किसकी वजह से होते हैं, वो करंट की वजह से होते हैं, ओके. इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. तो ये हमारे पास इंटरनली लॉसेस होने हैं, तो इसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, ओके. दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, so we call this as the internal resistance of the cell, okay. अच्छा, it depend on the, like इसको आप उस तरह कंपेयर कर लो, like it depend on the liquid, okay. आपने ये एक solution कौन सा लिए, it depend on the this liquid, okay, like the concentration of this electrolyte, you can say. It depend on the nature of the electrolyte, ओके. ये किस से बना है, HCl से बना है या H2SO4 से बना है. सो इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट्स, okay, and it's depend on the distance between these two plates, okay. And it's depend on the nature of the electrodes. ये electrodes हैं हमारे पास, ये कौन से मटेरियल से बने हैं, ओके. और इनका एरिया पे भी डिपेंड करता है कि कितने थिकनेस उसकी ज़्यादा है. सो दैट इज द डिपेंडेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके. इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ लाइक इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, तो इन 4 to 5 पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं, और ये भी इंस्टीट्यूट में आते हैं. तो यू शुड रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, ओके. अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं EMF की तरफ आ जाते हैं, टर्मिनल वोल्टेज की तरफ आ जाते हैं. सो ये आपका EMF है, दिस इज योर रेजिस्टेंस. एंड यहाँ पे मैंने इसको ई हमने यहाँ पे कंसिडर किया. क्यों कंसिडर किया, वैसे तो ये ई से लेस होगा बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस, बट करंटली वी डोंट हैव एनी करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ओके. कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो उसी वजह से ये ई जो है हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ओके. अगर करंट फ्लो होगा तो फिर आप इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे तो वो गलत होगा. ये इजी है, बस आपने केवीएल KCL अप्लाई करना है, सो उससे आपको ये हो जाएगा. अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ आ जाए तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस, ओके, अननोन रेजिस्टेंस. और इसमें एक एमसीक्यूज आता है कि कौन से ब्रिज हमारे पास एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस करते हैं.
या लो रेजिस्टेंस को हम कौन से ब्रिज से मुहैया करते हैं, या हाई रेजिस्टेंस को या मीडियम रेजिस्टेंस को। तो ये होते हैं लाइक जो काफ़ी एमसीक्यूज में ये रिपीट भी हुए हैं। एंड अभी जो चैप्टर हैं उसमें आप लोग ये एमसीक्यूज मिलेंगे। कल वन जो होते हैं वो लो टेम्परेचर के लिए यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे आप लोग वो मिल जाएगा अ, उस एरिया में से लाइक जो हैं। अभी मैं जो होमवर्क आप लोगों को दूंगा तो उसी उसी में मैं आप लोगों को लेक्चर रिकमेंड करूँगा, तो उस लेक्चर में ये मैंने काफ़ी अच्छे तरह से एक्सप्लेन किए, और बाकी ब्रिजेस को भी मैंने एक्सप्लेन किया वहाँ पे। अच्छा, ये इतना इसमें ये फार्मूला बस आप माइंड में रख लो, और ये सर्किट डायग्राम थोड़ा सा माइंड में रख लो कि किस तरह ड्रा करना है। अगर न्यूमेरिकल आ जाए और वो थोड़ा सा चेंज दे दे न्यूमेरिकल, तो उस लाइक एमसीक्यूज, तो उसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, तो वो उसके लिए आप ये डायग्राम थोड़ा सा माइंड में रख लो। और ये फार्मूला फार्मूला भी आप डायग्राम माइंड में रख लो। तो फार्मूला क्या होता है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू आर एंड क्यू एंड इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू पी एंड एक्स। ओके, तो ईजी है। किरचॉफ लॉ दैट इज इसके बाद हमारे पास किरचॉफ लॉ में एक करंट लॉ आता है, एक हमारे पास वोल्टेज लॉ आता है। ओके, तो करंट लॉ में हमारे पास जंक्शन जो होते हैं वहाँ पे सब करंट इन होते हैं, और फिर जंक्शन से आउट होते हैं लाइक दिस। ओके, इसको हम पे मुझे पता है आई टू इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। और यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो वोल्टेज लॉ जो है हम इसमें हम इसका लूप बना देते हैं, और फिर लोगों को खाना प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये इन्होंने फिर वो किया है। अच्छा, यहाँ पे आपने रजिस्टर के करंट इस तरफ फ्लो हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। यू शुड बी वेरी केयरफुल। इसमें करंट इस तरफ फ्लो हो रहे हैं, तो ये आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। ओके, तो ये अपने माइंड में रखना है। ओके, अक्सर थोड़ा इसमें कन्फ्यूज होते हैं। करंट तो यहाँ से इस तरह आ रहे हैं, वहाँ से तो इस तरह आ रहे हैं। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, तो ये आपने माइंड में रखना। साइन कन्वेंशन। Okay, now let's come to the battery. So in battery we also have the internal resistor. Okay, so so we will consider that internal resistor over here in formulas as well. So if MCQs also come from this topic, that different cell will be given to you in series, and there will be some cells which are in which have a parallel combination with these cells. So the question will be what will be the current flowing in that. Okay, तो आपने वो सारे फैक्टर्स फाइंड करने। तो अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये करंट किस तरह फाइंड किया, करंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्चुअली दैट इज इक्वल टू दी करंट इज इक्वल टू दी वोल्टेज डिवाइड बाई आर। तो यहाँ पे वोल्टेज ई है, तो ई हमारे पास मल्टीपल है क्योंकि ये हमारे पास सीरीज में कनेक्ट हैं। तो सबको आप लाइक इस तरह सबको आप इस तरह सबको आपने काउंट करने के कितने हैं, तो वो आपने इसकी जगह इन एन लिखने। एन इज़ द नंबर ऑफ सेल्स। ओके, सेल्स कितने, तो हर सेल में हमारे पास एक ही वोल्टेज होते हैं, वी होते हैं। ओके, और रेजिस्टेंस के साथ इसमें हर एक के साथ नजर रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो एन आर कर दो। ठीक है, और जो सर्किट का मेन रेजिस्टेंस होता है वो तो आपने बाद में फिर ऐड करना है फील्ड में। ओके, तो दिस विल बी द फाइनल कैलकुलेशन। उनसे आप पूछ लो कि उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक क्या वो आ रही है ना वैल्यूज। सही है। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने बस ये यहाँ पे किया, बस आई डो एम ई डो एम प्लस आर ई, ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना है।
अच्छा, अब सीरीज पैरेलल combination. So if you understand the series combination, if you understand the parallel combination, then hopefully you will also understand the series parallel combination. Like if in one circuit series combination is given to you as well as the parallel combination, then how you will solve that. So hopefully you will solve that type of question. Okay, and I also solved it in numerical in MCQs as well. इनको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है. ओके, लाइक इतना वो नहीं आते, बस आपने वहाँ पे माइंड यूज़ करना है और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने डिसीजन लेना है. ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर. ओके, इसके एमसीक्यू जो हैं वो मैंने 100 एमसीक्यूज इसमें कवर कर चुका हूँ. 10 वीडियोज़ हैं, तो दैट्स विल बी योर होमवर्क. ओके, होमवर्क क्या होंगे? दैट इज़ चैप्टर 2 एमसीक्यूज videos. That is from 1 to 10, then 10 to 11, 11 to 12 इस तरह है, up to 100 है. ओके, इसमें चेक करते हैं टोटल एमसीक्यूज कितने हैं. ओके, 40. यहाँ से हमने फिर वो करना है. सॉरी, यहाँ से इस सारे में 100 रुपये दिए थे 100 तक. ये हमारे पास 100 हैं और ये 100 सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए वहाँ पे. ओके, इसमें ये एमसीक्यू भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं आपको यहाँ पे वो कर देता हूँ एज ए होमवर्क. ओके, उसका लिंक मैं आपको लोगों को दे देता हूँ, तो वो आप वहाँ से कवर अप कर लें. ओके, if you have any question in any video, then please put that in the comment section. I will answer you there. Okay, so now I'm going to close this class. Okay, this is the end of this class. Thanks for watching. See you in next video tomorrow inshallah at the same time. Okay, thanks for watching. Allah Hafiz. अच्छा, वो वीडियोस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. वो वीडियोस ये हैं. ये वीडियोस हैं. ओके, आप लोगों ने इसको कवर अप करना है. ये देखो, ये मैंने चैप्टर 2 के एमसीक्यूज 1 से लेकर एमसीक्यू 10 तक, और फिर उसके बाकी ये अप टू 100 तक एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो इनको हम कवर कर लें अप टू कल, लाइक टुमारो क्लास. ओके, फिर हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. ओके, अल्लाह हाफिज़.